Euler's method. Suppose this is xn and this is xn plus 1, xn plus h. इनमें डिफरेंस क्या होगा? h. So I can write this as xn plus 1 term. ठीक है. Now this will be your yn and this is your yn plus 1. तो इसमें क्या करते हैं हम? xn अगर हमें नोन है, वी वांट टू नो xn plus 1, हम यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दैट इज द स्लोप. तो ये स्लोप जो है, ये स्लोप यहाँ पे आगे बढ़ रही है और यहाँ पे ये हमारा xn plus 1 आ गया. जहाँ पे दोनों मीट करेंगे that will be the xn plus 1. that will be the numerical solution, numerical value. बट इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? फंक्शन कहाँ है? दिस इज द कर्व ऑफ द फंक्शन. फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो थोड़ी ऊपर यहाँ पे आ रही है. दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू. तो ये बीच में जो है क्या है? दिस इज द एरर. ठीक है. सो व्हाट वी हैव इज इन आयलर मेथड, in Euler method we have d1 yes we have dy by dx equal to f of x comma y, and we are given that y at x naught equal to y naught. ये given. ठीक है. So जैसे हमने पहले किया था पिकल्स मेथड में, we have y equal to y naught plus integral of f of x y dx. ठीक है. इसमें तो कोई डाउट नहीं है. नहीं सर. Okay. Now let us say we have to find y1. So y1 is y naught function of plus integral f of x and y naught. x comma Y naught dx. y naught dx. This is from x naught to X. x. ठीक है. Yes, sir. Now if I want to find it like y1, so this will be like y1 equal to y naught. So y1 is fine given, right? अभी हमने y1 ही लिखा. हाँ y1 ही लिखा है ना. Yes sir. So this is equal to, इसमें हम क्या करेंगे? We will take it as x naught to x1. पहले हम जो है, अभी ये n वाला है, बट हम पहले छोटा वाला जो इंटरवल x naught to x1 लेंगे. And here we will put f as x naught comma y naught dx. So this gives us y1 equal to y naught plus f x naught y naught. F x naught y naught, that is, what is f x naught y naught? This is like dy by dx at x equal to, ये यहाँ पे xn पे है,
वो x नॉट पे हो जाएगा. So that is the slope. That is the slope. ठीक है. So that is the. So this is slope at a point is some constant value. उसको हम बाहर लेके आ सकते हैं. F of x naught y into integral x naught to x1 dx. dx का इंटेग्रल क्या होगा? x. dx का इंटेग्रल x होगा. जब लिमिट्स पुट करेंगे x1 minus x naught. x1 minus x naught is h. x1 minus x Yes, naught. yes, sir. h है. So we have y1 equal to. We have y1 equal to y naught plus h into f of x naught y naught. Why? This is the Euler's formula. Formula. तो यहाँ से हम y n plus 1 भी ले सकते हैं. y n plus 1 equal to y n plus h into f of x n comma y. Why? This is Euler's formula. तो हम उसको स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं और स्लोप के हिसाब से हम जो है सॉल्यूशन निकालते जाते हैं. थोड़ा थोड़ा एरर आता है उसमें. तो अगर हम जितना जो है वो स्टेप्स में जो डिवाइड करेंगे, अगर नंबर ऑफ स्टेप्स विल बी स्मॉल तो एरर ज़्यादा होगा, और अगर नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो ज़्यादा होंगे तो एरर रिड्यूस हो जाएगा. Let us take an example. वही क्वेश्चन लेते हैं. सबसे पहले किया था x plus y. dy by dx equal to x plus y. Where x0 equals to 1. And we have to find x 1. 1. Yes. y at x equal to 1. Same question we will do with this method. We have dy by dx equal to x plus y. Y at 0 equal to 1. So इसमें हम h कैसे निकालेंगे? मैं बताता हूँ. Now it is up to you. तुम्हें 0 पे पता है, 1 पे निकालना है. You can like divide it into 10 intervals, 5 intervals, 15, 20. कौन सी? अरे चलो भी. 4 5 5 जितने ले सकते हैं 5 ले सकते ठीक है, तो 10 ले लेते हैं. हैं 10 ले 5 ठीक है सर हम ले लेंगे. So let us take h equal to n equal to 10. So h will be 0.1. ठीक है, so we will make a table. This is our x, this is y, this is slope, and this is new y. So new y will be like old y plus slope into h. नहीं वही वाला है. Starting पे x equal to 0, y equal to 1. And what is the slope? Slope is dy by dx. 1 by 0 तो infinity हो जाएगा. ठीक है, by 0. Next take x equal to 0.1. सही ऐसे तो टेबल बहुत बड़ी हो जाएगी ना. 10 से करेंगे ना. एच 0.1 लेंगे तो एक मिनट sorry. Slope is dy by dx. So this is equal to x plus y. तो slope क्या हो जाएगी? 0 plus 1 1 हो जाएगी. ठीक है, नॉर्मल हो गया 2. ठीक है. Now new y is equal to 2 old y. Old y is 1
प्लस स्लोप 1 इंटू 0.1, तो 1.1 मिलेगा। ठीक है, या मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज लाइक ओल्ड y इज 1 प्लस स्लोप 0.1 h को पहले लिख लेते हैं, नहीं तो फिर ये कहेगा कि इसको पहले बाद में 0.1 इंटू 1, स्लोप इज 1, सो दिस इज 1.1। हाँ सुनो, बोलो क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? सर जब h को 0.1 लेंगे तो सर टेबल बहुत बड़ी नहीं बनेगी। नहीं 10 ही वैल्यू लाएंगे। 10 वैल्यू आनी है। When x इक्वल टू 0.1, y की वैल्यू वहां से नोट करेंगे 1.1, स्लोप हो जाएगी x प्लस वाई, 0 प्लस 0.1 प्लस 1.1 इक्वल टू 1.2। न्यू y will be old y is 1.1 plus 0.1 into 1.2, so this is 1.22। now x is 0.2, x की वैल्यूज पहले लिख लो, चाहे 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 and 1.0। here we have 1.22, slope will be x 0.2 plus 1.22, this is 1.42, new old y is 1.22 plus 0.1 into 1.42, this is equal to 1.36। ठीक है सोनू, इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यस सर। बट डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऐड है। ठीक है, ठीक है सर। so here we have 0.3 plus 1.36, this is 1.66, 1.36 plus 0.1 into 1.66, so this is equal to 1.53। इतनी काफी है और भी करूँ कैलकुलेशंस? बाकी सर बाकी कर लोगे? यस सर। तो ये लास्ट पे आ जाएगा 3.18, 0.9 तक ही आएगा। Here it will be 3.18, so this will be like the new value 3.18। तो हमारे पिछले मेथड से ये वैल्यू आई थी 3.45, इससे आ रही है 3.18। नेक्स्ट इज मॉडिफाइड आइलर्स मेथड। तो मॉडिफाइड आइलर मेथड अब हम करेंगे। ये अगर ये डाइजेस्ट हो गया, आगे चलें। ठीक सर। हाँ मॉडिफाइड है इसके दो थे, उसमें हमारा a भी चेंज होता है शायद, वो मतलब उसमें हमारा x भी चेंज होता था। जो उनकी वैल्यू ज़्यादा बड़ी होगी उसको अगर कुछ वैल्यू अगर पॉजिटिव में आती है शायद y चेंज होता था, नेगेटिव में आती है तो शायद a चेंज होता था। ऐसे ही है ना सर उसमें? a plus b करके कुछ है ये थोड़ा हाँ ये थोड़ा A plus वो B है करके कि a भी चेंज उसका होता एवरेज है। निकालते हैं। सर वही बात है। तो सर इसमें सिर्फ ये टेबल निकाल के इनफ है। हाँ टेबल के एंड पे वैल्यू आ गई तुम्हारी पूरा 1 पे। सिंपल ही है टेबल बनाना, तो ज़्यादा डिफिकल्ट। फिर सर हमें ये फॉर्मूले में पुट करना है कि नहीं करना? फॉर्मूले में फार्मूला कहाँ है? ये जो नीचे ये जो नीचे वाला था। तो ये फार्मूला में टेबल, ये फार्मूला में तो लिखा है, टेबल है वही सर। we have written yn plus 1 is equal to old y plus h into f x n, ये तो लिखा है ये फार्मूला यहाँ। फार्मूला लिख लिया पहले, ठीक है, इनपुट नहीं करना, बस टेबल बनाना है। टेबल की लास्ट में जो वैल्यू होगी दैट विल बी आंसर।
मॉडिफाइड आयलर्स मेथड में क्या करते हैं हम कि जैसे यहाँ पे हमें dy by dx हमने निकाल लिया, यस ठीक है। तो हमने क्या लिखा है कि आवर दिस थिंग इज इक्वल टू लाइक y इक्वल टू y प्लस h इंटू स्लोप। जी सर। तो स्लोप अगर हम यहाँ पे भी ये निकाल लें, स्लोप यहाँ पे अलग स्लोप है, यस सर यहाँ पे जो टेंजेंट है दैट इज डिफरेंट, ये टेंजेंट अलग है, स्लोप चेंज हो रहा है कर्व का, और दोनों स्लोप का अगर हम एवरेज ले लें दैट इज मॉडिफाइड आयलर मेथड, ये दोनों स्लोप का हम एवरेज ले लें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लाइक आई एम राइटिंग like this is a modified Euler's method. In modified Euler's method, we have y1 equal to y naught plus h into f of x naught plus y naught, ये तो हमारा यहाँ से आ गया, जी सर। ठीक है। अब हम इसको सोल्यूशन को, ये हमारा इनिशियल हो गया, इसको हम और रिफाइन करते हैं। कैसे रिफाइन करते हैं कि वी से y1 इन द नेक्स्ट स्टेप, y1 इसको हम ऐसे यहाँ पे 1 लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम y1 0 बोल देते हैं। दिस इज इक्वल टू y नॉट प्लस h इंटू, ये सॉरी प्लस नहीं आएगा, कॉमा आएगा। नाउ हियर वी टेक f ऑफ x naught y naught यस सर plus f of x naught comma x naught, sorry x naught plus h लेना है, या x1 भी लिख सकते हैं, x naught plus h comma x नॉट प्लस h पे वैल्यू क्या होगी, y1, बट y1 हमने अभी कहां तक निकाला है, 0 तक, ठीक है। तो ये भी स्लोप है, ये स्लोप कहां पे है, इस वाले पॉइंट पे, यस सर इस वाले पॉइंट पे। ये स्लोप कहां है, x नॉट y नॉट, इस वाले पॉइंट पे। तो दोनों स्लोप का हम एवरेज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप y2 विल बी y नॉट प्लस h बाई 2, एक्चुअली इसको h बाई 2 लिखते हैं, ठीक है। और ब्रैकेट में आएगा f x नॉट y नॉट, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, प्लस f ऑफ x नॉट प्लस h y2 y, y1 1 ये 1 ही लिखना था यहाँ, गलत y1 with power 1 y1, पुराना लिखिए। ठीक है। तो ये हम y1 की वैल्यू को ही जो है वो रिफाइन कर रहे हैं, एक ये इनिशियल वैल्यू। तो आयलर मेथड में क्या है कि जो 1.1 वैल्यू आई उससे हम आगे बढ़ गए नेक्स्ट स्टेप पे, यस सर बट इसमें हम नहीं बढ़ते हैं, इसमें हम 2-3 बार उसको और करेक्ट करके फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। सो y1 लाइक यहाँ पे कुछ हम 3 इज इक्वल टू y नॉट प्लस h बाई 2 f ऑफ x नॉट y नॉट प्लस f ऑफ x नॉट प्लस h कॉमा y1 2। तो 2-3 मतलब लास्ट वैल्यू चेंज होती रहेगी। हाँ, ये वाली चेंज होती रहेगी। इससे क्या है कि देखो पहले हमारी कुछ वैल्यू आ गई y नॉट,
इसकी y1 की, तो y1 की सपोज ये यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू आई, इससे हमारी यहाँ पे ये स्लोप निकल आएगी। फिर हम उसको जब दोबारा नई स्लोप पुट करेंगे यहाँ पे इन दोनों की एवरेज, ये वैल्यू हमने कहाँ से निकाली थी, ये वाली स्लोप से। अब जब दोनों की एवरेज स्लोप लेंगे हम, तो दैट एवरेज स्लोप थोड़ी ऊपर जा सकती है, नीचे आ सकती है, इट विल एक्चुअली मूव क्लोजर टू द कर्व, ठीक है। तो फिर ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, तो एरर रिड्यूस होता जाएगा, ये पर्पल होता है इसका, ठीक है। तो इसका भी हम एक टेबल यहाँ बना लेते हैं, ये सेम क्वेश्चन हम करते हैं, इसी टेबल में से फिट कर देते हैं। इसी में नहीं हो नहीं पाएगा, मतलब नया डालकर। स्पेस नहीं है एक्चुअली ना, अच्छा ठीक है। तो इसमें हम जो है नंबर ऑफ एडिशन से पिन कर देते हैं। 0.3 तक निकाल लेते हैं ना, 0.3 तक जो है वो पहले वैल्यू कितनी आई है इसमें, 1.53 आई। निकाल लेते हैं जितनी निकल पाएगी, देखते हैं। ठीक है, तो मैं ये साइड रेज करूँ या उधर वाला करूँ, कौन सा रेज ये भी से रेस करेंगे कर दूँ ना, ये हरा वाला भी कर दूँ अब। जैसे कर दो। एक मिनट या इसी के नीचे कर देते हैं, इतनी जगह काफी है। मिटा दो सर, अगर चाहो तो फॉर्मूला भी मिटा लो, हो गया। ठीक है, now we have x, then we have y dash equal to x plus y, then we have mean slope, and then we have y equal to old y plus h by 2 into mean slope। ये टेबल हम बनाए, ठीक है। सो लाइक इनिशियली वी हैव x equal to 0, y is 1, so y dash is 1, mean slope तो mean slope अभी के लिए तो 1 ही है, Yes, sir. and y equal to old y is 1 plus h by 2, that is 0.5 into mean slope, that is at 1। नहीं, यहाँ पे मीन स्लोप है नहीं हमारे पास, तो हम यहाँ पे इसको खाली छोड़ देंगे। और हियर वी विल राइट 1 प्लस 0.1 इंटू, पॉइंट 1 बाय x था। तो 1.1 हो गया, ठीक है। इसको ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसके लिए वो पुराना फॉर्मूला ही लगेगा। अब हमारा x जब 0.1 हो गया, नॉट व्हाट इज y डैश, y डैश विल बी 1.1 तो उधर है ना, 1.2 हो जाएगा। हाँ ये इससे पॉइंट में जुड़ेगा। 0.1 plus 1 x plus y है ना। ठीक है। मीन स्लोप इज 1.1 प्लस, देखो मीन स्लोप इज
इन दोनों का मीन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 1.1 1.1 this is the mean slope and our y is equal to old y is 1.1 plus h by 2 is 0.05 into mean slope 1.1 देखो ये कितनी वैल्यू आ रही है सर वैल्यू तो बता रही है नहीं एक मिनट ये नहीं चेंज होगा ये 1 ही रहेगा ये फर्स्ट स्टेप में अभी तो ये ओल्ड वाई चलेगा ना 1.055 नहीं ये चेक कर लो एक बार 0.05 into 1.1 अच्छी कितना है 0.1 फिर 2 भी था इसमें वही देखो है ना जीरो 0.1 0.05 नहीं 0.1 है ना अच्छा अरे सोनू भाई 0.1 डिवाइड बाय 2 इसमें डिवाइड बाय 2 होता है h by 2 नहीं एक मिनट पहले वाले नहीं एच ही आएगा क्योंकि मीन स्लोप का मतलब ही ये है कि उसने वो मीन ले लिया वही तो मैं बोल रहा हूँ तभी तो ठीक है तो वही दिस तो मैं कंफ्यूज हो रहा है 0.1 तो नीचे 2 आएगा फिर भाग ठीक देंगे ठीक ठीक सोनू भाई हाँ, ठीक सर है। 1.11 हाँ दोनों साइड नहीं आएगा ना वो गलती हो गई सोनू भाई तुम लेजेंड हो यार तभी तो कंफ्यूज था 1.11 ठीक है Yes, sir. नेक्स्ट 0.1 1.11 प्लस 0.1 1.21 Yes, sir. mean slope is 1.21 and 1.2 by 2 तो सर एक काम करो सर हो सके तो वो सर h by 2 का ना फॉर्मूला में से h by 2 का h के नीचे से 2 हटा के उसी के नीचे रख लो 0.705 कहाँ लिखा है नहीं सर अच्छा वो अलग है ठीक कैलकुलेशन के हिसाब से सर ये y मीन स्लोप लेते हैं ना हाँ 1.2 सर जी x है वो एक हर मिनट रुको फिर करते हैं हैं अरे सर जो x है वो हर बार ये सेम होगा नहीं रुको ये यहाँ पे भी ये लिखते हैं 1 प्लस 1.2 by 2 और यहाँ पे ये 1 प्लस 1.2 by 2 1 प्लस 1.21 by 2 ये हो गया 1.105 यहाँ पे हो गया 1.1 so this is 1 plus 0.1 into 1.105 ठीक है so this value is like 1.1105 सर जी जो x का मतलब है स्टार्टिंग में तो 0 रहेगा फिर इसके बाद मतलब 0.1 हर बार आएगा हाँ तो 0.1 पे जो है हम वैल्यू को और करेक्ट कर रहे हैं ना ये आ गया 1.y डबल डैश y डबल डैश x प्लस 1.2105 this is like 1 plus 1.2105 by 2 so this is 1.1052 1.1054 4 डेसिमल से आगे नहीं जाना है 1 plus 0.1 into 1.1052 so this will be also 1.1105 तो ये एक जो है अब यहाँ पे स्टॉप कर देंगे हमने 3 उसकी जो सर जी है
जो मीन स्लोप में मतलब जो स्टार्टिंग में जो एक्स है वो फिक्स रहेगा। हाँ क्या फिक्स रहेगा, बस फिर से बोलो। हम एक पे ही कर रहे हैं ना, हम उस पे करेक्शन कर रहे हैं। हाँ वो उसी को करेक्ट कर रहे हैं। हाँ। उसमें ऐसा नहीं था, उसमें हर बार चेंज हो रहा था। अच्छा वही मैं कंफ्यूज उसमें x की वैल्यू पूरी दे रखी थी, इसमें हम ठीक है। एक उसके x पे- नेक्स्ट हम जो है वो पॉइंट 2 पे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम पॉइंट 1 वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। पॉइंट 1 एट पॉइंट 1 y डैश इज कोई नहीं 1.2105. There is nothing like mean slope, and the value is स्लोप डालना पड़ेगा। old y. ये नियम नीचे क्या है? हम अलग से निकालना है ना उसका। कैसे? अब हम उसको करेंगे ना पूरा सॉल्व करेंगे। 1.1105 plus 0.1 into 1.2105. This is 1.2316. 1.2316. Next, point 2. When we take point 2, 1 y dash will be point 2 plus this value. So it will be 1.4316. Mean slope will be 1.2316 plus सर एक सेकंड सर, ये वाले जो भी अपने नया स्टेप सर स्टार्ट ये जो ये आपने बीच में लाइन खींची है ये हम नेक्स्ट स्टेप पे चले गए ना। अब जो है पॉइंट 1 पे थोड़ी पॉइंट 3 तक जाना है हमें। हाँ तो हमने अब ये जो है पॉइंट 1 वाली वैल्यू को फाइनल ये वैल्यू को रीड कर लिया है 1.2105। अच्छा, तो उसको रीड करेंगे उसके बाद। हाँ अब हम पॉइंट 2 के लिए मूव पॉइंट करें। 2 के लिए मूव करेंगे। ठीक है। अब 0.2 की सारी करेक्शन करेंगे। हाँ तीन करेक्शन करके फिर पॉइंट 3 पे जाएंगे। मतलब कम से कम 3 करेक्शन के बाद चेंज। हाँ नहीं मान ले। हाँ 3 करेक्शन के बाद सेम आ गया ना देखिए। अच्छा सही है। इसलिए ठीक है। नाउ मीन स्लोप विल बी 1.202105 1.2105 plus 1.4316 by 2. This is equal to 1.32105. 1.3211. And here we have 1.1105 plus 0.1 into 1.3211. So this is 1.24266. Next, point 2, 1 point, ये 4316 कहाँ से आया? अच्छा ठीक है। आपने वो x plus हाँ ठीक है 1.4426 1.2105 plus 1.4426 by 2. This is equal to 1.3266. 1.3266. Here we have 1.1105 plus 0.1 into 1.3266. This is equal 1.24316. 1.24316 316 को 32 लिखेंगे। तो नेक्स्ट अगर एक ही इक्वेशन और जाएंगे तो भी सेम आएगा, तो मैं छोड़ रहा हूँ 1.2432 पे। ठीक है।
और क्या इस हिसाब से नहीं, निकालेंगे लंबा कहाँ जाएगा? 30 जाएगी तो 30 जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है चल हर बार के 3 दिन कर दिए ना तो हम ज़्यादा नहीं बनाते एक ही निकाले, 3 तक निकाला। नहीं वैसे 10 तक निकालेंगे तो 30 ही वही जाएगा ठीक अबे तो बस एक ही क्वेश्चन कर पाओगे। पॉइंट 2 and y dash is वाई हमने निकाला y dash ये हो जाएगा 1.24 plus 0.2 1.4432 1.2432 ठीक है। ये मीन स्लोप इसमें नहीं आएगी एंड द वैल्यू इज लाइक 1.2432 plus 0.1 into 1.4432 1.3875 1.3876 1.3875 1.3876 752 है 76 लिखेंगे ना 5 6 चलो ठीक है। नेक्स्ट 0.3 आ गया, 0.3 आने से ये बन गया 1.6875। Here average slope will be like 1.4432 plus 1.6875 by 2 सर 1.6875 क्या है? अच्छा x plus y point x ठीक 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 सर x plus y 1.2432 plus 0.1 into this average 1.4653 सर ये तो अभी पहले मैच नहीं हुआ ना शायद 1.5654 1.565 का कौन सा मैच नहीं हुआ? सर ये मतलब ये जो है आपने ये मैंने इसलिए छोड़ दिया, ये अगला कैलकुलेट करोगे तो मैच हो जाएगा। 2426 है, 2432 आ गया, अगला 2432 ही आएगा, तो इसलिए मैंने यहीं पे छोड़ दिया है क्योंकि ठीक है। मुझे एटलीस्ट किया है दिस इज इक्वल टू 1.3997 1.3997 3997 next will be 0.3 1.6997 1.4432 plus 1.6997 by 2, this is equal to 57145 1.5715. Very good, 5715, and here we get 1.2432 plus 0.1 into 1.5715. This is equal to 1.4003. 4003 या 2 आएगा, ठीक है। अभी एक स्टेप 1.4003 हाँ, तो 2 स्टेप और करोगे तो 1.4002 आ जाएगा। आई एम नॉट डूइंग इट, ठीक है। हमें सर वहां तक करना जब हमारी दो आखिरी की हाँ, वो दोनों same हो मैच कर जाए हाँ, यहाँ पे ऊपर भी अगर एक बार और करोगे यहाँ पे, तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया था। ठीक 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 है सर ठीक है। सो द आंसर इज 1.4003 ठीक है। तो इसका अगर एग्जैक्ट सॉल्यूशन देखा जाए पॉइंट 3 पे, तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन इज 1.3997। मतलब ये हो रहेगा एरर वो है बाकी एरर है जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है 1.3997 है,
ठीक है। Yes, sir. तो जो आइलर्स मॉडिफाइड मेथड से 1.4003 आ रहा है यस सर और इस मेन आइलर्स मेथड से 1.53 आ रहा है, तो कौन सा पास में है? सर 1.403 यस सर ठीक है, तो ये हमें मतलब एरर घटाना है। एरर घटाना नहीं, ये कहने का मतलब है कि मॉडिफाइड आइलर्स मेथड इज बेटर Better देन than- आइलर्स। ठीक है, वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन के पास में लेके आता है। ठीक है, इतना काफी है। यस सर अभी रंगा वाला मेथड कल करेंगे, मतलब Yes. नेक्स्ट। और इसका जो है एटलीस्ट 2 क्वेश्चन करना है, ठीक है, तभी उसमें हो पाएगा। जैसे स्टार्टिंग में मेरा भी वो गलत हो गया था ना,